Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 28 एंड मैथ्यू chapter 25 verse 31 till last हम पढ़ेंगे। I'll read in English and in Hindi as well. यूहन्ना chapter 19 verse 28। वैसे तो कल जो हमने गुड फ्राइडे मनाया उसके अंदर बहुत कुछ हमने चर्च से सीखा, जो हमें चर्च में मैसेजेस मिले, हमने उस मैसेजेस को पढ़ा और उस पे मेडिटेट करने की कोशिश करी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे परमेश्वर के इस कलाम को दोबारा से एक बार फिर इस पे मेडिटेट करके एक मैसेज देने की ज़रूरत है। आइए हम इस मैसेज को, इस पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में सरेंडर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, द मोस्ट होली मदर ऑफ द लॉर्ड, होली मदर मैरी, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing. Father Lord, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing on us, and the love Mother Mary had shown and given to your Son in this worldly life. We are thankful for our Holy Mother, Mother Mary. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Make me able to read the Word of God and meditate on it, and whomsoever, whensoever, wheresoever listen the Word of God through this video or any other source, Father Lord, may that person be blessed and healed in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit and the power and strength of our Lord Yahweh Parmeshwar. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 28। It's written here, before the death of Jesus Christ, Jesus knew that by now everything had been completed, and in order to make the scripture come true, he said, I am thirsty. I'll read in 29 as well. A bowl was there full of cheap wine, so a sponge was soaked in the wine, put on the stalk of hyssop, and lift up to his lips. Jesus drank the wine and said, It is finished. Then he bowed his head and died. क्या लिखा है हिंदी में? ईसा की मृत्यु हेडिंग है। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के लिए उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी भी से भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोखता डुबोया और उसके जुफे के डांडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया।
ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। Matthew 25 verse 31 till last. When the Son of Man comes as King and all the angels with him, he will sit on his throne, his royal throne, and the people of all nations will be gathered before him. Then he will divide them into two groups, just as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the righteous people on his right and the other on his left. Then the king will say to the people on his right, come, you that are blessed by my Father, come and possess the kingdom which has been prepared for you ever since the creation of the world. I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you received me in your home. Naked and you clothed me. I was sick and you took care of me. In prison and you visited me. The righteous will then answer him, when, Lord, did we ever see you hungry and fed you, or thirsty and gave you a drink? When did we ever see you a stranger and welcome you in our home, or naked and clothe you? When did we ever see you sick or in prison and visit you? The king will reply, I tell you, wherever you did this for one of least important of these brothers of mine, you did it for me. Then he will say to those on his left, away from me, you that are under God's curse, away to the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. I was hungry, but you would not feed me, thirsty, but you would not give me a drink. I was stranger, but you would not welcome me in your home, naked, but you would not clothe me. I was sick and in prison, but you would not take care of me. Then they will answer him, when, Lord, did we ever see you hungry or thirsty or stranger or naked or sick or in prison, or would not help you? The king will reply, I tell you, whenever you refuse to help one of these least important one, you refuse to help me, these then will be sent off to eternal punishment, but the righteous will go to the eternal life. I'll read in Hindi. मत्ती 25 verse 31 till last. जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा, तो वह अपनी महिमाएं सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्र आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया।
मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मुझे भेंट करने आए और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और आपने यहाँ अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हो जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार और बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैंने ये वचन इसलिए पढ़ा क्योंकि बीता हुआ कल जो हमने गुड फ्राइडे कह के मनाया, और हमने चर्चेज में बार बार जाके, हर साल जाते हैं हम, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को भी लेके जाते हैं और परमेश्वर के कलाम से और ज़्यादा उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि वे परमेश्वर के कलाम को और ज़्यादा जान सके, समझ सके, पढ़ सके और परमेश्वर की हजूरी में और ज़्यादा अपने आप को बढ़ा सकें। बहुत सी जगहें जो कल वर्शिप हुई उसमें ये लिखा गया या बताया गया, नॉट लिखा गया, आई एम वेरी सॉरी, बताया गया, एग्जाम्पल्स लिए गए कि परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, मैं प्यासा हूं। हाँ कहा, लेकिन आपने उस वचन को अच्छी तरह इलैबोरेट नहीं किया। आपने उस पाक कलाम को, परमेश्वर के अच्छी तरह जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं किया। आपने ये कहा, जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल सकता है, या अन्य एग्जाम्पल दिए गए कि जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो वहां पे क्रूस पे प्यासा था और उसने एक सैनिक से जो उसे दंड दे रहे थे, उससे कहा, मैं प्यासा हूं। और उसने एक बहुत ही चीप किस्म की जो वाइन, जो सिरका वहां पड़ा था, उस रुई पे लगा के आगे, उस भाले के आगे रख के उसके होंठों पर लगाया, यीशु मसीह नासरी के होंठों पर लगाया और परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आपको इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह, इस वर्ष को आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा, कंप्लीट नहीं कहा।
आपको इस वचन को पूरा पढ़ना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, जब तू मेरे पाक कलाम को किसी पे डिलीवर करे, कहीं भी उस पे मेडिटेट करे या किसी को डिलीवर करे या किसी को सिखाए, ना तो इसमें से बढ़ाना और ना ही घटाना। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भी परमेश्वर के कलाम को कहीं भी डिलीवर कर रहे हैं, काइंडली रीड द कंप्लीट वर्स, नॉट ओनली दिस दैट आई एम थर्स्टी, जीसस सेड आई एम थर्स्टी, नो। यहां लिखा है, जीसस न्यू दैट बाय नाउ एवरीथिंग हैड बीन कंप्लीटेड, सब कुछ पूरा हो चुका है। उस समय वहां पर सब कुछ पूरा हो चुका था। वह सब कुछ क्या था? वे सब कुछ वो था कि परमेश्वर ने जब हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को क्रूसीफाई किया, और जब परमेश्वर के लहू का एक एक कतरा परमेश्वर के इस शरीर से बह चुका था, वो पूरा हो गया, सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और परमेश्वर को पता है कि आज परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग के मृत्यु लोक में जाके मौत को हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, जो कि हम कल, दैट इज संडे, आने वाला कल रेजरेक्शन डे मनाएंगे। यहां लिखा है, Jesus knew that by now everything had been completed, and in order to make the scriptures come true, comma, he said, inverted comma start, I am thirsty, inverted comma close and full stop. परमेश्वर ने परमेश्वर के पाक कलाम को पूरा करने के लिए कहा, मैं प्यासा हूं, और प्राण त्याग दिए। क्यों प्यासे हैं? यहां पे हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के लिए, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के लिए उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के लिए उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। और आज हम जो हर साल रेजरेक्शन डे, गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आज भी परमेश्वर प्यासे हैं। क्यों? उस चीज को बताने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने आप परमेश्वर के किसी भी कलाम को लाके आप तक डिलीवर कर सकूं। आई एम वेरी सॉरी, प्रभु मुझे माफ करे। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य किया कि मैं विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट मैथ्यू 25 वर्स 31 टिल लास्ट आपके सामने पढ़ा। यहां पे लिखा गया, जो मैंने पढ़ा आपको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा। यहां पे लिखा गया, परमेश्वर ने कहा, मैं प्यासा था, भूखा था, नंगा था, बीमार था, प्रिजन में था, या दुखी था, या जो कुछ भी लिखा गया। यहां पे कहा गया कि जब when the Son of Man comes as king and all the angels with him, he will sit on the royal throne, and the people of all nations will be gathered together before him. यहां पे कहीं भी यह नहीं लिखा गया only Christians will be gathered together, only any other religions का नाम दे के नहीं कहा गया that they will be gathered together. यहां पे लिखा गया the people of all the nation will be gathered together before him, will be gathered before him. In Hindi as well I read,
जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तब वे अपनी महिमाए सिंहासन पर विराजमान होगा और सब राष्ट्र उसके आगे सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। द पीपल ऑफ ऑल नेशन विल बी गैदर्ड। सब राष्ट्र ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे संसार के लोग एक झुंड में इकट्ठे किए जाएंगे और उसमें से भेड़ अलग और बकरियां अलग, और वी कैन से भेड़िए अलग किए जाएंगे। वो बकरियां या भेड़िए कौन हैं? वे लोग वो हैं जो आज भी अपने किसी भाई को, अपने किसी धर्म भाई को, अपने किसी पड़ोसी को, अपने किसी दोस्त को या सगे संबंधी को दुखी देख के उसके दुख में शामिल नहीं हो रहे। क्योंकि यहां कहा गया, सारा मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, यहां पे लास्ट में कहा गया इस वचन में, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वो ग्रुप अलग हो जाएगा, और किसी एक के लिए नहीं किया, वो ग्रुप अलग हो जाएगा, और ये अनंत दंड भोगने योग्य होंगे। अनंत आग में जाएंगे वे लोग जिन्होंने अपने परमेश्वर के छोटे से छोटे भाइयों के लिए नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात है। यहोवा पिता को हम गॉड द फादर कह के मानते हैं, और यहाँ पे परमेश्वर ने हमें छोटा भाई होने का अधिकार दिया, यीशु मसीह नासरी ने। यहाँ कहा गया, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों से। और जब परमेश्वर क्रूसीफाई हो रहे थे, परमेश्वर का एक दास, एक नबी परमेश्वर के पास आया, उसने कहा कि तू मेरे से दूर हो जा, तू मेरा भाई है, मेरी मां मरियम को मां कह के उसकी रक्षा करना। अब मैंने वर्सेस वो नहीं ढूंढी, आई विल कम अगेन विद दोज वर्सेस एज वेल, but it is written in the Bible. I'm very sorry if I'm not saying the exact written in the Bible. और परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि दो भाग्य किए गए उस ग्रुप के, और एक अनंत आग में डाले गए और एक को अनंत जीवन दिया गया। जो ये प्यास है प्रभु यीशु मसीह नासरी की उस कलवरी क्रूस पे, जो हमने कल जिस पे मेडिटेट किया, जो हमने गुड फ्राइडे मनाया, वो प्यास और कोई नहीं। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो प्यास वो है जो परमेश्वर ने जब चेले चुने, कहा कि कम आई विल मेक यू द फिशरमैन। मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि ह्यूमंस पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो ह्यूमन पकड़ने वाले का मतलब ये है कि जितनी खोई हुई भेड़ें हैं, क्योंकि यहाँ दर्शाया गया कि परमेश्वर ने वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और चरवाहा सिर्फ और सिर्फ भेड़ों का होता है। यहाँ लिखा गया परमेश्वर के पाक कलाम में, तब राजा अपने दाएं के लोगों को कहेंगे, ऊपर लिखा है, यहाँ लिखा है, और सभी राष्ट्र के सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। उसमें डिफरेंस जो है, जो अच्छे हैं वो एक साइड किए जाएंगे और जो बुरे हैं वो एक साइड किए जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे अच्छा कौन है बुरा कौन है, हमें कैसे पता? यहाँ बताया गया, जो अपने छोटे से छोटे भाई की मदद नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि आज वो मदद में है और आपके पास अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं है आप मदद नहीं कर सकते। आप अपने भाई को, उस भाई को या उस व्यक्ति की मदद
काइंड में कर सकते हैं, उसके लिए दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने बहुत सी सुविधाएं ऐसी ला दी हैं कि अगर किसी के पास कैश नहीं है अपना इलाज कराने के लिए तो उनका मुफ्त में इलाज भी हो रहा है। और उस समय अगर किसी को इमरजेंसी है और उसका कोई केयर टेकर नहीं है तो उसका भी मुफ्त में इलाज उसी समय किया जाता है और बाद में बिल बनाया जाता है। और यहाँ पे वो प्यास परमेश्वर की यही है कि आज भी हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को और तक डिलीवर करने की और परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों को खोजने की। वे प्यास तब तक चलेगी जब तक परमेश्वर का पाक कलाम पूरा नहीं होगा। वो पाक कलाम और कोई नहीं, वो पाक कलाम वो है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा परमेश्वर से अंगीकार करेगी, हे प्रभु हमें बचा। जो बच गए हैं वो कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें बचा लिया। और जो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर के कलाम को, वो कहेंगे हे प्रभु एक बार और मौका दे दे। तो उस समय मौका नहीं मिलेगा क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जिस भी धर्म में आप हो, मैं नहीं कह रहा अपना धर्म छोड़ दो, सच्चाई को जानो और उसके बाद आप डिसीजन लो कि आप भेड़ बनना चाहते हैं या बकरियों के झुंड में रहना चाहते हैं। ये कॉल आपकी है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में कहा गया मैंने तुम्हें चुनने का अधिकार दिया है। चुनना आपने है, आपने भेड़ बनना है या भेड़ियों के पीछे रह के बकरियां बनना है। बहुत से लोग परमेश्वर के कलाम को मैनिपुलेट करके भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, दशवांश इकट्ठा करना चाह रहे हैं। Anyhow, I am not here to discuss on this topic. Right now we are discussing the thirst. I am thirsty. Jesus said, because जब परमेश्वर को क्रूसीफाई किया गया उस समय भी बहुत से लोग ऐसे थे कि बरनबास को बचाओ। I'll find that verse. बरनबास जो एक और वहाँ पे वो था व्यक्ति जो गुनहगार था, वहाँ पूछा गया लोगों से कि किसको बचाया जाए, प्रभु यीशु मसीह को या अदर पर्सन को। तो उन्होंने अदर पर्सन का नाम लिया और प्रभु यीशु मसीह नासरी को कहा कि परमेश्वर को ही दंड दिया जाए, जबकि परमेश्वर ने कोई गुनाह नहीं किया था। आज के समय भी बहुत सी बार ऐसा होता है, जो गुनहगार होते हैं वो बच जाते हैं और जिन्होंने गुनाह किया होता है उन्हें दंड भोगना पड़ता है। लेकिन संसारिक लोग ये नहीं जानते, जब यीशु मसीह नासरी को दंड दिया गया, वो मौत पे विजयी पाके अपने पिता के सिंहासन पे चला गया और उसने क़यामत के दिन का अधिकार प्राप्त किया। तो आज अगर आप उसके चुने हुओं को किसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग में किसी भी प्रकार का दुख देने की कोशिश करेंगे, तो यहोवा परमेश्वर का क्रोध, वो कोप जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, वो आग आपको नहीं बख्शेगी। वो आग आपको नहीं बख्शेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा कि जो भेड़ हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। I'll read that verse, let me find। यहाँ पे लिखा गया कि वो राज्य संसार के
पृथ्वी के बनाने से पहले ही परमेश्वर ने बना दिया था। तो वो लोग परमेश्वर के चुने राजा उन्हें यह उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह नासरी का रूप लेके संसारिक जीवन में आए उनके लिए किया। यहाँ लिखा है, तुमने मेरे लिए भी नहीं किया जो भेड़ बकरियां हैं, और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो अनंत जीवन और कोई नहीं, इटर्नल लाइफ है, वो स्वर्ग है। यहाँ लिखा है इन इंग्लिश, दीज देन विल बी सेंट ऑफ टू द इटर्नल पनिशमेंट, बट द राइटोज विल गो टू द इटर्नल लाइफ। वो धधकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे जो परमेश्वर के सामने गुनाहगार हैं। और आज भी हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे भाइयों को जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, या जो भी हमें बेचारा कोई भी पर्सन दुख में है, उसके दुख में उसके लिए दुआ प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के हजूरी में उसको लाना चाहिए और उसे परमेश्वर का कलाम देना चाहिए, ताकि वे उस नरक की आग से बच जाए। यहाँ लिखा है 41वीं आयत में, Then he will say to those on his left, Away from me, you that are under God curse, away to the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels। 41वीं आयत जो है परमेश्वर के कलाम की, वो है, तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बहुत ज़्यादा क्रोध परमेश्वर का उस समय भड़केगा। मेरी आपसे यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप बचाए गए हो, सबसे पहले अपने घर परिवार को बचाएं, उसके बाद अपने पड़ोसी को बचाएं और अपने सराउंडिंग्स को बचाएं, ताकि वे भी उस नरक की आग से बचाए जाएं। और उस प्यास जो यहोवा परमेश्वर ने उस समय यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर से कहा, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उस समय भी बहुत से लोग परमेश्वर के कलाम को नहीं ग्रहण कर पाए या करना चाह रहे थे। आज भी समय है कि समय रहते आप अपने अजीज़ों को परमेश्वर की उस आग से बचा लें। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, माँ मरियम जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। जिस तरह हम बचाए गए हैं, आपने हमें अपना पाक और पवित्र कलाम दिया, आपने हमें अधिकार दिया प्रभु जी, हमारी ज़ुबान से यहोवा परमेश्वर का, यीशु मसीह नासरी का, पवित्र आत्मा का, सभी स्वर्गदूतों का, मोस्ट होली 7 एंजल्स का, स्वर्गीय सेना का, माँ मरियम का नाम हम ले पाते हैं और प्रभु जी आपका पवित्र कलाम पढ़ पाते हैं। उसी तरह अन्य भाइयों बहनों को भी बचाएं, ताकि वे भी प्रभु जी आपकी हजूरी में अपने आप को दे सकें। मेरे यहोवा परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा मैं अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, हमारे आने जाने को, उठने बैठने को, चलने फिरने को, बोलने चालने को, हर एक विश्वासी पास्टर प्रीचर बिलीवर को आपके पाक और पवित्र 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 अति पवित्र गोद में सौंपता हूँ। हर वो जन जिस तक आज तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुँचा, चाहे किसी भी माध्यम प्रभु जी, और जो वे आपके चुने हुए हैं उन तक आपका पवित्र कलाम पहुँचे, और वो प्यास प्रभु जी जो क्रूस पे आपने कहा आप प्यासे हैं, वो प्यास आपकी बुझ जाए, और आपको जो यहोवा परमेश्वर ने कार्य दिया है, जितनी भेड़ें रह गई हैं उन सब भेड़ों तक आपका पवित्र कलाम पहुँचे और वे भी बचाए जाएं, ताकि जब क़यामत का दिन आए मेरे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में, जब यीशु मसीह नासरी सिंहासन पर बैठ कर आए, उस क़यामत के दिन एक भी भेड़ उस भेड़ के ग्रुप से अलग ना रह जाए, बकरियों के ग्रुप में ना रह जाए। मेरी आपसे यही दुआ प्रार्थना है। हमारी इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दें। In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife, our kids, in the name of the God, the Father, Son, God, the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.